एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता। I welcome our chairman of Western India Regional Council of ICI, CA Arpit Kabra, and all the participants who have joined online as well as offline. We have two places where we have kept, physical. One is at Pimpri Chinchwad as well as at Mumbai, BKC, and of course online also is there. You will be happy to know, of course, Arpit also will tell you that Anil Kavdeji, the Cooperative Commissioner, is joining physically at Pimpri Chinchwad, and also TN Kavde, who was an instrument in preparing the entire panel instructions, everything, even in the earlier and now. He also has joined at Pimpri Chinchwad branch. Welcome to TN Kavde sir also. So with this welcome address from I as one of the participant and as a member of the institute, as well as the member of the cooperative study group and also the committee, I welcome each one of you, and I request Arpit Kabra ji to give us the welcome speech. Thank you. Hello everyone, am I audible? Yes, very much. Sir, right. Come. Respected TN Kavde sir, welcome to this wonderful meeting. Thoda fill up kariye na. Yeah. Good afternoon everyone, and welcome to this wonderful session. This session, none of us thought we would have in WIRC or in Maharashtra, as per the trend, as per the responses that we were getting every time we made a representation. But thanks to the persistent efforts, thanks to all the efforts put in by all the resource people, led by under the able guidance of CA Ramesh Prabhu sir, a backbone, really a mentor for so many of us, and someone who has really ensured he works down to the details, to the T, and make sure that every representation to everyone possible in this cooperative ecosystem is made. Inspired from him, I ensured all the branches of Maharashtra, we send a representation from all of them. Our Ahmednagar branch especially went to Pune to meet the people, the stakeholders, and made the representation under the leadership of Yashwant Kasar, the cooperative committee chairman this year, and also the director of Cosmos Cooperative Bank. Apart from that, we had the Pune branch, the Pimpri branch working tirelessly to ensure that we did. We also met with Shri Atulji Save, the then minister. Then came a classic land master stroke. Our Jalgaon branch people, we made them go and visit Awad Sahib and probably make a representation there as well. And all of this was done, everything happened, and that finally, with constantly interacting with Kavde Sahib, I think I must really mention Kavde Sahib has been really, he was here in BKC, he had all the interactions, he led us, he guided us,
what should be done and how should it be done. And of course, Anilji Kavde, who will be joining in very shortly, currently the commissioner, Honorable IAS and commissioner of this cooperative department. After all these efforts, finally we hear and we see after 2017, we see the entire new drive for cooperative empanelment of auditors. So I must really thank all the resources over here. And as from WIRC, we have for ourselves set up a huge target, 10,000 par. This time we want to ensure at least 10,000 CAs from Maharashtra get empaneled on this cooperative empanelment and act as an auditor in the cooperative sector and work shoulder to shoulder, arms in arms, hands in hands with the beautiful cooperative department and ensure that this department, just like we have fired up the MSME and the startup space, we should also now focus and get cooperative department up and running and a flourishing department so that we can ensure all round growth in even in smaller areas, in Mufassil areas and every areas. In WIRC, we will leave no stone unturned. Let me tell you, constantly, like recently, the entire guidelines and the circular notification that were issued were in very, very, strong Marathi language. And what we've done is it was even difficult for some Marathi people also to understand that. So what we've done is we've translated that into English. Also, we are translating that into Hindi, and then we'll be circulating it to all our chartered accountant members. Apart from that, we are also setting up help desk. I'm happy to share with all of you that a new WhatsApp chat bot, WIRC Setu, has been launched. Now, this bot has an in-house functionality to serve all the people who are facing any issues in the cooperative empanelment. We have one-stop solution there. You can all try it on your websites. The new website of WIRC that you will see from that website, you will get to here and you can directly access this chatbot, WIRC Setu. And then probably you can reach out to us if you are having any problem. Apart from that, from all the branches, we have nominated people, and they will be sitting with the DDR offices, respective DDR offices, and we want to ensure that all the scrutiny of applications that is being done happens in a very, very organic manner, and any issues, any difficulty that is faced by any of our chartered accountant, we would be happy to resolve them quickly and one-to-one. I must really congratulate the entire cooperative department at WIRC and especially Ramesh Prabhu sir for guiding us and for making sure that we constantly. Apart from this, we are also parallelly we are creating a entire house or a data information, a room of data, which can help for cooperative department, including all the audit manuals. We are getting it translated. We are now also providing Excel templates and everything that is required to ensure that the audits under this cooperative sectors are high class and absolutely of quality and will give a very, very important insight to the cooperative department as well. More importantly, one of the important things, and since Kavde Sahib is here and Ramesh Prabhu sir is here, sir, we need to have 2 more representations. There should be some kind of a MOC, memorandum, that we could pass in these audits. There has to be some IRAC norms, and if we can make a representation, I think at WIRC and ICI, we can work very closely with the cooperative department and define these all programs as well, so that these audits can become more and more robust and will have a wonderful impact in real time. With these words, I welcome once again, and today I'm sure with Kavde Sahib and with, I think it's a blend of technology and cooperative together, because 2 places physical programs are happening at Pimpri and Mumbai. We are all connected through a platform. We are at another location, of course, and we'll be joining Kavde Sahib soon along with Anilji, and then probably we'll have a wonderful discussion again. But I'm sure all the issues and clarifications that you wish will be delivered today by Prabhu sir and by Kavde Sahib. Welcome once again, and wish this time we cross the 10,000 number of chartered accountants in the cooperative empanelment. All the best, and WIRC is committed towards this cause. We want to hear any issues that you may have, any problems that you may face. We are here to solve that. Let us know.
Thank you very much. Over to you, Ramesh Prabhu sir. Kavre sir, we have with us Mr. T.N. Kavde, a honorable, joint registrar from the audit wing, recently retired. And he has worked throughout his career in the COP department, started with the district special auditor. And then even in Mumbai, he was a part of the audit team in Mumbai. Then he was in Pune, various states. And ultimately, he became a joint registrar in Pune, and he was sitting in the commissioner office as the retired from the commissioner office as the joint registrar audit, taking care of various policy decisions, making the circulars. And you will be happy to know that earlier time also, he was a person who was involved in preparing the panel. This time also, he has put all his efforts in preparing the manual, or rather even the circulars that we are seeing. And of course, now because he was involved so much and we requested him, and he has always been kind enough to attend or address any of the program that we as a chartered accountant invite him. And all the way from Pune, he used to come. This time he has to go at different place. And even the commissioner is in Pune. He said, I will do live. Then we said, why don't you come to Pimpri branch? And both of them agreed to come at Pimpri branch. And he shifted his schedule of going to Shirdi by 1 hour late in the evening. And that is how he has joined. With all this, we all, with a round of applause, welcome you, sir. And we request you, आपण मराठी, हिंदी, इंग्लिश तिन्ही लँग्वेज मध्ये मिक्स करू शकतात. आपल्याला एवढंच आमचं रिक्वेस्ट आहे, शेवटी आपल्या लोकांना मराठी म्हणजे कळणं गरजेचं आहे, आणि ते आपण एफिडेव्हिट पण देणार आहोत. म्हणून तर एक कार्यक्रम मध्ये मी जेव्हा गेलेलो तिथे तर असंच केलं, मी मराठीत सुरुवात केलं, ते सर्व वर्णन लागलेत. म्हटलं तुम्ही मराठी एफिडेव्हिट दिलेले आहे, पॅनल मध्ये आलेले आहेत, आणि तुम्ही मराठी ऐकायला तयार नाहीयेत. म्हटलं असं नाही चालत. पूर्ण लेक्चर मी मराठीत दिला होता. तर मी म्हटलं नंतर तुम्ही इंग्लिश मध्ये विचारा. तर यू आर फ्री टू आन्सर इन ऑल द लँग्वेजेस वॉट एव्हर इज कम्फर्टेबल टू यू. ओवर टू यू कावड़े सर. थैंक यू. ओके, आज शुरुआत से हमें प्रोसीजर समझा दीजिए कि किस तरह से क्या करना है, कसं करावं लागेल, काय करावं लागेल आपला परिपत्रक प्रमाणे. येस सर, थँक्यू. ओवर टू यू. good afternoon everybody. I am thankful to WRC chairman Mr. Arpit Kabra and member C. Ramesh Prabhu Saab for inviting me to give one procedure of audit panel empanelment, how to do application, what is the difficulties in there, how papers upload, etc. etc. Yes, yes, you are audible. No Yes, problem. audible. Okay. Okay. Yeah, you are audible, very much audible. Yes. No problem. Yeah, go ahead. After 3 years waiting period, government started the empanelment procedure from 23 October 23. हम तीनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ ओके Cosmopolitan. yes, yes, okay. On 16th October 23, Commissioner Cooperation and Registrar issued a circular regarding empanelment for the year 24-26, 2024-26. पीछे वाला अपना जो था वो 18 to 20 तक था. बीच में मार्च 20 में पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गया. इसी वजह से वो अपना एम्प्लॉयमेंट रिन्यूअल नहीं हो गया. उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के बाद एटलीस्ट अभी 23 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, और अभी लास्ट पैनल को आपको दिसंबर 23 तक रिन्यूअल गवर्नमेंट ने कर दिया है. दिसंबर 23 तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पैनल में है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर इसकी प्रोसीजर और दिसंबर से आगे गई तो भी गवर्नमेंट आपको कंटिन्यू कर सकती है.
उसमें कुछ दिक्कत नहीं। ये पैनल हम जब भी चालू करेंगे, एप्लीकेशन आपको जो भरना है वो 23 अक्टूबर से शुरू करना है। 23 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट चालू हो जाएगी। बाद में आपने अपना जो एप्लीकेशन है वो फिलअप करने का है। उसकी प्रोसीजर में मैं बता सकता हूँ। सर्कुलर इज वेरी क्लियर, इफ यू रीड केयरफुली। 13 पेजेस सर्कुलर है, मगर ये सीए के लिए सिर्फ 2-4 ही पेजेस है, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। मगर अगर आपने केयरफुली वो रीड किया तो आपको समझ सकता है आपको क्या क्या करना है, क्या करना नहीं। इसमें पहली बार मैं फर्स्ट ये बता रहा हूँ, अगर कोई सीए फॉर्म इसका रजिस्टर ऑफिस महाराष्ट्र के बाहर है, वो ये पैनल के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकता। अगर हेड ऑफिस उसका आउट ऑफ महाराष्ट्र है और उसकी ब्रांचेस महाराष्ट्र में, वो नहीं कर सकता। जिसका हेड ऑफिस रजिस्टर एड्रेस महाराष्ट्र में है और ब्रांचेस आउट ऑफ महाराष्ट्र में, वही सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये पहला ख्याल में रखना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे बहुत सीए पूछ रहे थे कमिश्नर ऑफिस आके, सर मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है, मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ क्या? हमारे कोऑपरेटिव एक्ट में ऐसा लिखा है रूल 69 में, जिस सीए का और रजिस्टर फर्म का या आईसीडब्ल्यूए का ऑफिस महाराष्ट्र में है, वही सिर्फ कोऑपरेटिव एम्प्लॉयमेंट के ऑडिटर एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज दे विल नॉट डू द एप्लीकेशन। आपको पता है इसकी वेबसाइट है, हमारे सर्कुलर में डिटेल लिखा है www.mahasahakar.maharashtra.government.in। यही एक वेबसाइट है। ये 23 से स्टार्ट होगी। 23 से अपने एक एक करके एप्लीकेशन अपना फिलअप करना है। उसका प्रोसीजर में हमने सर्कुलर में दिया है क्या क्या करने का। उसका 20 अक्टूबर 23 को अभी हमारी नोटिस बोर्ड पे नोटिस आ जाएगी, आज तो आ जाएगी, न्यूज़पेपर में आ जाएगी, डीडीआर ऑफिस में आपको मिलेगा, कमिश्नर ऑफिस को आपको मिलेगा। देन 23 अक्टूबर टू 6 नवंबर नाइट 12 PM तक, 12 PM के बाद आपका एप्लीकेशन चालू अलाउड नहीं रखता होगा। हूँ, चालू रहेगा। 6 नवंबर तो आप ये वाला बटन दबाओगे ना तो आपका साउंड जाएगा। ये वाला साउंड डालो। 6 अभी नवंबर सामने तक जा रहा है। आपको वहां से एप्लीकेशन म्यूट फाइल करना है। है। इससे ये रेड हो जाएगा। हाँ। जरा आपका साउंड म्यूट करो प्रभु साहब। उसके बाद 7 नवंबर टू 21 नवंबर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी स्क्रूटिनी हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी कोऑपरेटिव कमिश्नर ने बनाया, इसका एक्ट में भी लिखा है। उसमें डीडीआर उस जिले के, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर उस जिले के, सनदी लेखा चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव, आईसीडब्ल्यू सीएमए का एक रिप्रेजेंटेटिव, सर्टिफाइड ऑडिटर का एक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई है। अगर आपको पता होगा तो आप डीडीआर के पास जाके ये सब WRC कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक डीडीआर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कमिश्नर ऑफिस में वो सब ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंड करने का है। उस टाइम 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये 15 दिन में कमिश्नर ऑफिस तो सब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रूटिनी कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद अगर आपको रिजेक्शन का मैसेज आ गया है आपके रजिस्टर मोबाइल या रजिस्टर ईमेल आईडी पे, तो रिजेक्शन का रीजन भी आ जाएगा। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, हमारे डिविजनल लेवल पे डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर एडीएम, डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑडिट एंड डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में जो डिप्यूटी रजिस्टर है वो, ये तीनों की कमेटी बनाई गई है, रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है। वो रिड्रेसल कमेटी के पास आप जाने का है। उसका टाइम है 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर तक। ये 7 दिन में अपने उस कमेटी के पास आपका जो कुछ
डॉक्यूमेंट्स फिलअप नहीं किया और कुछ वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, उसको उधर जाके आपने एप्लीकेशन दे देने का। उस कमिटी ने 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अपना सब जो आपने जो प्रोवाइड किया है उसकी स्क्रूटिनी करके आपको यस और नो बोलना है। अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो आपको आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को समिति कंसेंट देगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं तो समिति आपको It's obviously it's something that is going on for all of us. So, but it's उसके बाद 15 दिसंबर टू 21 दिसंबर तक आपने जो अपलोड किया है रिड्रेसल कमिटी के बाद वो स्क्रूटिनी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक डीडीआर लेवल और कमिश्नर लेवल पे स्क्रूटिनी हो जाएगी और उसमें आपको वापस एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा। और इसका फाइनल जो कमिश्नर ऑफिस में होगा वो 26 दिसंबर को फाइनल यादी हो जाएगी। उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास जाएगी और गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी। वो अपना पूरा जो लिस्ट है जितना भी होगा उतना वो गैजेट उसका पब्लिश होता है। ये प्रोसीजर, ये शेड्यूल मैंने आपको बताया, आपकी कमेटी का स्ट्रक्चर भी बताया। अगर WRC जो मेंबर उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे देंगी वो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का और कोऑपरेशन कमिश्नर के लेवल का जो का कुछ स्क्रूटिनी का कामकाज है उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करूंगा इधर, क्योंकि वो स्क्रूटिनी कमेटी का काम है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है उसकी स्क्रूटिनी ऑनलाइन नहीं करने की, किधर भी आपको हार्ड कॉपी प्रेजेंट नहीं करने की। उसके बाद दोनों कमेटी के पास से स्क्रूटिनी होने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया किसी वजह से तो आपको मैसेज आ जाएगा। उसमें 2-4 रीजन होंगे, जैसा आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए, आपने शपथ पत्र अपलोड नहीं किए गए, शपथ पत्र का नमूना भी आगे है मगर ये रिजेक्शन का कारण आपके मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे आ जाएगा। देन आपने आपका फोटो वो साइज में नहीं दिया है, 100 KB की वो साइज है उसमें दे दिया नहीं। देन आपकी पैन कार्ड की जेरॉक्स अच्छी तरह से दिखती नहीं। लास्ट टाइम इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गए थे, हाईकोर्ट में हमारे 46 रिट पिटिशन दाखिल हो गए थे, क्योंकि इसका 2 रीजन था। एक तो वेबसाइट अच्छी तरह से चल नहीं रही थी, उसको एक्सटेंशन देने लगा। देन कई लोगों ने ये वेबसाइट बंद होने के बाद यानी एप्लीकेशन रिसीव कितना है 7 तक है, तो 7 के बाद भी एप्लीकेशन भर दिया था, तो वो तो स्क्रूटिनी कमेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसकी वजह से भी वो कोर्ट में चले गए थे। देन आपकी स्कैन कॉपी अपलोड अच्छी तरह से नहीं हो गई, दिखती नहीं, तो इसका भी एक रीजन रिजेक्शन का हो सकता है। देन आपका पार्टनरशिप फॉर्म है उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन अगर इंडिविजुअल चार्टर्ड है, अगर इंडिविजुअल CMA है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। देन ये 4-5 रीजन आपकी रिजेक्शन की है। केयरफुली यू हैव टू अपलोड by given the size in this circular, you have to upload in time। इसमें क्या हो जाएगा, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के लिए आ जाएंगे। लास्ट ईयर 11,500 या 11,600
टोटल एक मिनट, हाँ, टोटल डिपार्टमेंटल ऑडिटर, सर्टिफाइड ऑडिटर और CA फर्म्स पैनल पे थे। इस टाइम तो अभी 3 बरस रिन्यूअल नहीं हो गया, इसकी वजह से कम 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आने वाले हैं। अभी इसकी प्रोसीजर मैं बताता हूँ। दूसरा एक इसमें आप ख्याल रखो, अगर कोई सर्टिफाइड ऑडिटर्स न्यूली एप्लीकेशन कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस की जरूरत रहती है और वो CA के पास जाता है, CA रजिस्टर फर्म के पास जाता है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगता है। इसमें एक ख्याल में रखो, जो रजिस्टर फर्म, जो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट ईयर पैनल पे थे, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट GD वाले को दे सकता है। अगर CA लास्ट पैनल पे नहीं है, CA फर्म लास्ट पैनल पे नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट GD जो पास हुए उसको एप्लीकेशन करने के लिए नहीं दे सकते। ये ख्याल में रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, those who are not impanel, they are also given the experience certificate and they are invalid। तो एक ख्याल में रखना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही है, कुछ ही डॉक्यूमेंट ऑफलाइन डिपार्टमेंट के पास देने का नहीं है। क्या मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के बारे में बोलूंगा। जो दोज हु आर GD उसके बारे में मैं बातचीत नहीं करूंगा। इसमें एक ख्याल रखने का, आपका क्वालिफिकेशन के मुताबिक से आपका वर्गवारी यानी क्लासिफिकेशन इसमें किया है। क्या है? रजिस्टर फर्म CA की है, रजिस्टर फर्म CA में की है, उसके लिए क्लासिफिकेशन A है। Those chartered accountant who have experience less than 5 years in cooperative audit, वो B1 में आ जाएंगे। Those who have experience of cooperative audit more than 5 years, individual chartered accountant, वो A1 में आएंगे। तो इसमें तो ABC कैटेगरी क्या है, A में A1 A2, B में B1 B2, C का आपको देखने का नहीं, C तो सिर्फ सर्टिफाइड ऑडिट के लिए है। तो A1 में कौन आएगा? ऑल रजिस्टर फर्म्स ऑफ CS एंड CA में। A1 में कौन आएगा? इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोज हु हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 years इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑडिट। देन B1 में कौन आएगा? दोज हैव एक्सपीरियंस लेस देन 5 years एंड मोर देन 1 year। मोर देन 1 year, लेस देन 5 year, जिसको ऑडिट का एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव में, वो B1 में आएगा। ये बात आपको समझना चाहिए। रजिस्टर फर्म के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। पहला ये आपके हार्ड डिस्क में फिक्स करने का है। RF के लिए कोई भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की या किसी की ऑडिट की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। They are applied directly. Then रजिस्टर फर्म में 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, so many partners are there। आपने अपना एप्लीकेशन फिलअप करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट फिलअप करने का है ये बाद में देखेंगे। मगर मैं जैसा A फर्म में पार्टनर हूं, मैं और B फर्म में पार्टनर है, तो कौन सी भी एक ही फर्म एप्लीकेशन कर सकती है, क्योंकि इसमें हमने पैन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक ID किया है। अगर मैंने A फर्म में भर दिया, B फर्म में भर दिया, तो जिसने पहला भर दिया उसका एप्लीकेशन पहला एक्सेप्ट होगा। B फर्म ने उसके बाद भर दिया तो ऑलरेडी उसका पैन नंबर कवड़े का उधर दिखता है, तो वो फर्म का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा।
ये पहला ख्याल में रखो। प्रभु सर बराबर है ना, एक पार्टनर दो फर्म में रह सकते हैं ना? ओके, तो ये पहला सोचने का, फर्स्ट कम फर्स्ट। तो जिसको पहला करने का है वो आप सोच लो। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने का है वो सोच लो, अभी हम वो देखेंगे। रजिस्टर फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट यानी अपना स्टेटस रिपोर्ट, देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इट इज द इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, सीओपी की जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी स्कैन करके अपलोड करने का है, जेरोक्स की अपलोड नहीं करने का। ये हमने लिखा है सर्कुलर में। अपना जो सीओपी है, सीओपी की आपके पास जो ओरिजिनल प्रत है उसका स्कैन करने का और वो अपलोड करने का है। देन वही भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने का है, पीडीएफ फॉर्मेट में। देन पैन कार्ड इज यूनिक आईडी, सो केयरफुली पैन कार्ड अपना अपलोड करने का है। लास्ट टाइम हमें ऐसा एक एक्सपीरियंस आ गया, एक सीए था, उसने इंडिविजुअल भी भर दिया, फर्म भी भर दिया था। इंडिविजुअल भरने के टाइम उसको पैन कार्ड में थोड़ा सा रैश कर दिया था, तो पैन कार्ड एक्सेप्ट कर दिया कंप्यूटर ने। हमने जो लास्ट फाइनल ऑडिटर की जो लिस्ट आई उसमें 2 जगह पे वो दिखता था, मगर एक जगह पे पैन कार्ड की थोड़ा सा कॉपी अच्छी नहीं दिखती थी, एक जगह पे मगर नाम तो वही था, आपका मेंबरशिप नंबर तो वही था, सब एक ही था, मगर 2 जगह से उसने भर दिया था। एक तो पूना में भर दिया था, दूसरा और डिस्ट्रिक्ट में भर दिया था, इसलिए वो चला गया। बाद में उसको हमने डिपेंडल कर दिया, महीने भी लास्ट ईयर में 7-8 महीने पहले उसको डिपेंडल कर दिया। तो इसमें हमको एक स्वयं घोषित प्रमाण पत्र देना है। अगर इसमें हमने कुछ फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स स्टेटमेंट किया तो अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 199 और 200 हमको लगता है। अगर कोई गलत आपने किया तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, वो तो हम तो डिपार्टमेंट लेते हैं। देन ऑल पार्टनर्स फोटो, ऑल पार्टनर्स, 3 पार्टनर है 3 पार्टनर के फोटो, 2 पार्टनर है 2 पार्टनर के फोटो वो अपलोड करने के। देन प्रोप्राइटरी में फर्म होगी, उसके सीओपी तो दोनों को भी कंपलसरी है। फोटो मोस्टली कलर फोटो आप अच्छी तरह से दिखता है तो कलर फोटो आप अपलोड कर दो। फोटो की साइज भी आगे हम प्रोफॉर्मा 3 में दिया है सब, तो हम पढ़ेंगे उधर क्या क्या उसकी साइज क्या है क्या नहीं क्या। उस सर्कुलर में हमने सनदी चार्टर्ड अकाउंटंट और कॉस्ट अकाउंटंट के लिए दिया है मराठी में। नामतालिकेसाठी सनदी परिवय लेखापाल यांना फर्मद्वारे किंवा वैयक्तिकरित्या यापैकी कोणत्याही एका कक्षेत अर्ज करता येईल, एकापेक्षा जास्त अर्ज चालणार नाही, जरी केले तरी ते रिजेक्ट होतील ड्यू टू योर पैन नंबर। पैन यूनिक आईडी रखा है, कंप्यूटर को समझ जाता है, अगर वो दिखता है 2 बार इसने एप्लीकेशन किया है, चालबाजी मत करने का। कोई ऐसा करता है पार्टनरशिप में भी एप्लीकेशन करता है, इंडिविजुअल भी करता है, तो हमने इस बार ऐसा किया है वो पार्टनरशिप का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर एप्लीकेशन भर दिया है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या करने का है देखो, अगर ऐसा ख्याल में आया
पार्टनरशिप में दो पार्टनर है, पार्टनरशिप के नाम पे एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए कर दिया, देन इंडिविजुअल भी कर दिया, ऐसा स्क्रूटिनी में दिखाया, तो पार्टनरशिप का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा और इंडिविजुअल का भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हर पार्टनर ने सोचना चाहिए कौन से कैपेसिटी में एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहिए। इन मैंने बताया सीओपी इज कंपलसरी, कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट, आपका जो स्टेटस रिपोर्ट रहता है पार्टनरशिप का वगैरह, वो इट इज आल्सो कंपलसरी, और उस पे हर डॉक्यूमेंट पे आपने साइन करने का है, हर डॉक्यूमेंट पे आपने साइन करने का है। इट इज ट्रू कॉपी, सेल्फ ट्रू कॉपी, किसी के पास जाना नहीं, सेल्फ ट्रू कॉपी आप करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड के लिए देते हैं और कुछ केवाईसी के लिए देते हैं, ये सेल्फ डॉक्यूमेंट एक पहला करने। अगर विदाउट सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया तो वो भी अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट, आप ख्याल में रखो। मैंने पहले बताया सनदी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको मिनिमम 5 इयर्स और उसके ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो A1 में आ जाएगा, रजिस्टर फर्म A1 में आ जाएगा। जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 इयर्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिट का एक्सपीरियंस है वो B1 में आ जाएगा, वो A1 में नहीं आ जाएगा। हमने इसमें एक स्वयं घोषित एफिडेविट देने का है, वो बाद में बताएंगे क्या क्या उसमें है। क्या वो सिंपल पेपर में देने का है, उसको प्रोफार्मा हमने बनाया है। क्या लिखा है उसमें वो भी मैं बताता हूँ। आई हैव sufficient knowledge of Marathi language. This is the important, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो I have sufficient knowledge of Marathi language. Then I am residing last 3 years in Maharashtra. It is also important. अगर आप यही बरस महाराष्ट्र में आ गए बंगाल से या और किस चेन्नई से, तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके उसमें एक और अट है, अगर आपकी रजिस्टर फर्म होगी सीए की या सीएमए की, उसमें 3 पार्टनर है, तो तीनों में से 2 पार्टनर का रेसिडेंस मोर देन 3 इयर्स रहना चाहिए महाराष्ट्र में। अगर एक है उसका 2 बरस का है 1 बरस का है तो चल सकता है, ये कंडीशन उसमें हमने डाल दिया है। क्या उसका भी स्वयं घोषित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफ फर्म में जिस नाम पे एबीसी नाम से आपकी आरएफ है, तो उस आरएफ ने सब पार्टनर में ए सेल्फ घोषणा पत्र अपलोड करने का है, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, सभी डॉक्यूमेंट साइज में अपलोड करने का है। मैंने तो पहले बताया अगर एक फर्म का भागीदार दूसरी फर्म में है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, जिसने पहला किया है उसका एब्सेंट होगा, वो आप ख्याल में रखो। और यही ख्याल में रखो एक पार्टनर दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो उसके ऊपर जो कुछ कार्रवाई कमिश्नर साहब स्टेट गवर्नमेंट करेंगे वो कर सकते हैं। अभी एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताता हूं, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने इंटरनल ऑडिट किया है कोऑपरेटिव का तो भी आप पैनल पे आ सकते हैं, स्टैट्यूटरी नहीं किया तो भी पैनल पे आ सकते हैं, मगर उसके लिए हमने क्या किया है, अगर वो 5 बरस से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है इंटरनल ऑडिटर का तो A1 में नहीं आ गया।
ये भी है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है 5 years एंड अबव तो A1 में आएगा। अगर जिसने स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप ने इंटरनल ऑडिट किया है, तो इंटरनल ऑडिट भले वो 10 साल का करेंगे, 8 साल का करेंगे, 4 साल का करेंगे, 4 साल का तो B1 में आता है, तो 6 साल का अगर आपने इंटरनल ऑडिट किया है, स्टैट्यूटरी नहीं, तो आप B1 में जाएंगे, A1 में नहीं आ सकते। अगर कोई सोचेगा नहीं अभी मेरा 6 years का एक्सपीरियंस है, मैं तो A1 में आ जाएगा, तो A1 में हम नहीं आ सकते, हम B1 में जाए, ड्यू टू नॉट डन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर आपका 5 years एंड अबव स्टैट्यूटरी ऑडिट आपने कर दिया है, तो आप A1 में आ सकते हैं। देन आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है? COP बोला, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको बोलते हैं। आपका भागीदारी फर्म का जो कुछ स्टेटस रिपोर्ट है वही करने का, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो CA का सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपलोड करने का है। अभी हम सेल्फ जो घोषणा पत्र देने का है, उसमें परिशिष्ट 2 बताए, उसमें क्या क्या बताया? आपने अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, दोज हु आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, तो आप उस बॉक्स में वो परिशिष्ट 2 में हमने वो लिखा है कौन से बरस का आपने ऑडिट किया है, उस संस्था का नाम, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देने का, आपने कौन सा किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, इंटरनल ऑडिट किया है और कॉस्ट ऑडिट किया है, वो आप लास्ट कॉलम में लिख सकते हैं। देन सेकंड थिंग, आई एम residing minimum 3 years in Maharashtra and I have a sufficient knowledge of Marathi. सेकंड है, मैं 10,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन नहीं ले सकता। अगर आपने एक बैंक है उसमें 10,000 से ज्यादा लोन लिया है, एक क्रेडिट सोसाइटी उसमें से 10,000 से ज्यादा लोन लिया है, तो ऐसी सोसाइटी का ऑडिट आप नहीं कर सकते। यही आपने घोषणा पत्र में देने का है। देन अगर आप कोई सोसाइटी में एम्प्लॉय रह गए, कई जन रहते MD रहता है वगैरह वगैरह बैंक में, हाँ, और डायरेक्टर भी रहते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर रह सकते, एम्प्लॉय रह सकते, तो वही सोसाइटी का हम ऑडिट नहीं कर सकते। यही अपने सेल्फ घोषणा पत्र में देने का है। आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट उसका नहीं करने का। देन हमारे पार्टनर दूसरे कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है, ये भी देने का है। देन हमने पार्टनरशिप में एक ही एप्लीकेशन किया है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन किया नहीं, ये भी रिजेक्शन का कारण हो सकता है। तो आपने घोषणा पत्र हमने एक ही पार्टनर ने एप्लीकेशन पार्टनरशिप ने एप्लीकेशन किया है, मगर ये एप्लीकेशन करते समय आप जब वो एप्लीकेशन देखेंगे उसमें बहुत सारे पेज है, वो 23 को आपको दिखाई देंगे, अभी तो उसका प्रोफार्मा आपके पास नहीं है। तो हर एक पार्टनर ने आपका पूरा डिटेल्स उसमें जो जो लिखा है वो फिलअप करने का है और देन सबमिट करने का है। इस टाइम ऐसा होगा, आपका सब मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आप जब फिलअप करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर कोई आपने मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं कर दिया तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो जाएगा, उसका भी प्रोसेस आगे लिखा है। और बाद में है
सदर माहिती सत्य असून यामध्ये काही खोटे आढळल्यास होणाऱ्या परिणामास व कारवाईस मी पात्र राहील. ये 6 कंटेंट्स उसमें आपने देने का है. इट इज अ सेल्फ घोषणा पत्र. अभी परिशिष्ट 3 में हाउ टू फिल अप एप्लीकेशन, इसके बारे में लिखा है. 24-26 के लिए अगर कोई न्यूली अप्लाइड करता है तो उसके लिए अलग है, उसके लिए टैब भी अलग है. अगर कोई पिछले पैनल पे है, 18 तो 20 का जो पैनल था उसमें है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है. उसने कुछ ही डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं करने का. उसका पार्टनरशिप में वही पार्टनर है, चेंज नहीं हो गया, रजिस्टर फर्म का नाम ही वही है, तो उसने सिर्फ आगे लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं. नवीन नामतालिकेवरील समावेशासाठी सद्यस्थितीत म्हणजे चालू नामतालिकेवर असलेल्या लेखापरीक्षकांनी त्यांचे सध्याचे युजर आयडी एंड पासवर्ड वापरून लॉग इन व्हावे. तुम्हारा जो अभी यूजर आईडी है और पासवर्ड है, तो वही लॉग इन करने का और अपना प्रोफाइल ओपन करने का. अगर प्रोफाइल में कोई चेंज है तो चेंज करने का, नहीं तो सबमिट करने का, सेव करने का, वही लास्ट वाला प्रोफाइल सेव करने का और सबमिट बटन दबाने का. दूसरी, अगर उसमें कुछ बदलाव करने का है, चेंज करने का, यू हैव टू चेंज एनी, उसमें पार्टनरशिप से इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल में से पार्टनर हो गया, देन आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आपका ईमेल आईडी चेंज हो गया, ऐसे कुछ मैंडेटरी फील्ड है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं. वो सब अपलोड करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको अगर अपलोड करने का, जैसा रजिस्टर फर्म का नाम चेंज हो गया, पार्टनर्स चेंज हो गया, तो पूरा आपको वो मैंडेटरी है, वो सब अपलोड करने का है. सिर्फ सेव एंड सबमिट नहीं करने का. सिर्फ इसमें एक ही ख्याल रखने का, जिसको कोई चेंजेस नहीं करने का, उसने सिर्फ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके प्रोफाइल ओपन करने का और उसमें सेव एंड सबमिट, तो लास्ट वाला इंफॉर्मेशन वो सेव हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे. दोबारा आपको न्यूली डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ जिसके लिए डॉक्यूमेंट ज्यादा सबमिट करने की है. कैसा, इसमें जो लास्ट टाइम 5 वर्ष के नीचे एक्सपीरियंस वाले थे, अभी उसका एक्सपीरियंस 6-7-8 साल का हो गया, तो अभी A1 में आएगा, तो उसने उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट किया है उसका डॉक्यूमेंट्स यानी एक्नॉलेजमेंट अपलोड करने का है. अगर आपके पास कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उसको भी हमने सब्स्टिट्यूट दिया है. जिस रजिस्ट्रार के पास से आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया है उसका रिटर्न लेने का और वो अपलोड करने का है. कई बार होता है ड्यू टू हेवी रेन, ड्यू टू कुछ ऐसा हो गया, आपका ऑफिस में डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप रजिस्ट्रार के पास से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं. वो भी ऑप्शन आपने इसमें रखा है. मैंने पहले ही बोला, those who are already in panel but they have to know change any information, they directly open log in and save and submit करने का है. जिसको दोबारा इंफॉर्मेशन भरने के, उसने यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने का है वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड सबमिट करने के. अभी इसमें जो सीएस और रजिस्टर फर्म नए एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले पैनल पे नहीं थे, उसके लिए अलग प्रोसीजर है. उसने हमारा वेबसाइट जो www.महाराष्ट्र महासहकार महाराष्ट्र.gov.in ओपन करने का है.
उसमें न्यू यूजर टैब है, न्यू यूजर पे जाने का और उसको क्लिक करने का, बराबर है। और उसमें आपका रजिस्टर फॉर्म होगा तो उसमें क्लिक करने का। उसके नीचे हमने उसके टाइप दिया है, आरएफ, इंडिविजुअल, देन जीडीसीएनडे, देन गवर्नमेंट, ऐसा टाइप दिया है उसमें। अगर आप वो लॉगिन करके देखेंगे तो उसमें नीचे आपको क्लिक करने का है, क्या, आरएफ, देन प्रोप्राइटरशिप, देन सीएमए आरएफ, सीएमए प्रोप्राइटरशिप, उस पर क्लिक करने का है। और आप जिस कैटेगरी में उस एप्लीकेशन में आपका इंफॉर्मेशन फिलअप करने का है। तो न्यू यूजर पर क्लिक करने का और आपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपका खुद का बनाने का है, खुद का बनाने का है। इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, अगर लास्ट पैनल पे जो दोज हु आर ऑन लास्ट पैनल, उसमें अगर कोई आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गया है, होता है सर। परसों मेरे एक सीए का फोन आया था मुझे, तो सर मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे को याद नहीं रह गया। तो उसके लिए भी हमने एक सुविधा दिया है। हमारा जो वेबसाइट लिख लो, com.audit.18@gmail.com। आप इस वेबसाइट पे ईमेल आईडी पे आपका जो कुछ भेजने का है, आई हैव फॉरगॉट माय यूजर आईडी, आई हैव फॉरगॉट माय पासवर्ड, तो आप इधर ईमेल कर दो, आपको तुरंत वो आपका यूजर और पासवर्ड भेज देंगे, ईमेल पे ही भेज देंगे। com.audit.18@gmail.com। जर कुणाचा युजर आयडी और पासवर्ड आठवत नसेल, कुणाला विसरला असेल, कारण आता 2-3 वर्ष झाली आपली वेबसाईट बंद आहे आणि त्याच्यामुळे बहुतेक वेळेला आपले ठराव अपलोड झालेले नाहीत, संस्थांची रिटर्न्स, मॅन्डेटरी रिटर्न्स अपलोड झालेली नसतील, तुमचे ऑडिट रिपोर्ट अपलोड झालेले नसतील, तर असे सगळे जे प्रॉब्लेम ज्यांना येतील त्यांनी या ईमेल आयडीवर आपला ईमेल करावा। असं माझं काय, तुम्ही इंग्रजीत करा, मराठीत करा, कसे करा, तर तुरंत तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमचा पॅन महत्वाचा आहे, काय, पैन यूनिक आईडी है। हम पैन से आपका फॉरगेट पासवर्ड और यूजर आईडी सर्च कर सकते हैं कमिश्नर ऑफिस में, सिर्फ कमिश्नर ऑफिस में, बाकी किधर नहीं। ये सब होने के बाद जो नए ओल्ड है, उसने एक टोटल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद, टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड सबमिट करके आपका एप्लीकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा। अभी अपलोड करने की डॉक्यूमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट, भागीदारी फर्म के बाद में उसमें ऑल पार्टनर्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपकी सीए की डिग्री सर्टिफिकेट, आपको जो कुछ इंस्टीट्यूट ने दिया है वो, देन इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट में उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट, इट इज कंपल्सरी। रजिस्टर फर्म के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, अगर कोई देखेगा उसमें एक्सपीरियंस भरने का है तो जरूरत नहीं, दोज हु आर इंडिविजुअल उसने ही भरने का है, बाकी कुछ नहीं। अभी इसमें हमने अपलोड करने के लिए साइज दिया है, आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज में 50-100 KB का रहना चाहिए, 50-100 KB का। देन आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्म में 1 MB तक की रहनी चाहिए। आप JPG करो,
और कुछ करो 1 MB तक की। अगर 1 MB से ज्यादा हो गए तो अपलोड नहीं हो सकता, उसको स्पेस ही उतना दिया है। आपका COP है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट होगा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो लिस्ट होगी उसको 1 MB तक आपने करने का और वो अपलोड कर सकते हैं। ये सब PDF फॉर्मेट में करने का है। PDF फॉर्मेट JPEG करो, PNG में करो, ये दोनों में आप PDF फॉर्मेट में ही सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड का स्कैन करके 1 MB तक की उसका होना चाहिए फोटोकॉपी। पैन कार्ड का स्कैन करके PDF फाइल में 1 MB तक, उससे ज़्यादा अगर आपका साइज हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो सकता। ये टेक्निकल बात है, उसमें आप थोड़ा सा केयरफुली ये करो। देन आपका जो स्वयं घोषित प्रमाण पत्र है वो भी आपने अपलोड करने का है। ये सब जितना मैंने बताया आप ख्याल में रखो। ख्याल में रखने की भी कुछ जरूरत नहीं, मैंने प्रोसीजर बताया है। ये सब हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के 16 तारीख के सर्कुलर में पूरा आ गया है। वो केयरफुली आपको, अगर मराठी नहीं समझती आप ट्रांसलेट इनटू अंग्रेजी, उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं समझती हिंदी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मगर प्रोसीजर इज द सेम। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको इस बारे में दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है प्रभु सर, एक 10 मिनट में कर कुछ यस, किसी का सवाल है? आपके उधर कोई पार्टिसिपेंट्स है अभी? नहीं है ना? है, 4-5 है। अच्छा, तो इधर किसी का कोई सवाल है हम लोग ले सकते हैं। सर, लेकिन पैन कार्ड रजिस्टर्ड फर्म का भी रहेगा और पार्टनर्स का भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, दोनों लाइक चाहिए। दोनों पार्टनरशिप फर्म का रहेगा और हर पार्टनर्स का पैन नंबर चाहिए, पैन कार्ड। पैन कार्ड। अच्छा, 2 पार्टनर हो गए तो 3 जन हो गए। हाँ, 3 पैन कार्ड हो गया। एक फर्म का पैन कार्ड हो गया और एक पार्टनर, दोनों पार्टनर का पैन कार्ड हो गया। क्या है, उधर जो स्क्रूटिनी होती है ना कंप्यूटर, वो पैन कार्ड के हिसाब से करते हैं। मान लो एक ही पैन कार्ड 2 एप्लीकेशन में आ गया, एक इंडिविजुअली किया है या मल्टीपल फर्म में वो पार्टनर है इसके लिए मल्टीपल फर्म में किया है, तो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर यू हैव टू मेक एप्लीकेशन एज पर द पैन। सो पैन आपका 3 हो जाएगा यदि पार्टनरशिप फर्म है। या मेरा फर्म है, मतलब इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है। हाँ, जरा सुनिए। हाँ, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है जिसका 5 साल कंप्लीट नहीं हो, 5 साल कंप्लीट हो गया, तो अभी मेरे को डायरेक्टली A1 में मिलेगा या कैसा हो जाएगा? बिल्कुल, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस बताना होगा। बताना, उसके लिए सब ये करना पड़ेगा। हाँ, डिटेल डालना होगा ना। मैं बताता हूँ उसमें Yes. अगर 5 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ इंटरनल ऑडिट का है तो आप A1 में नहीं आ जाएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट का है। नहीं, ही इज ऑलरेडी इन द पैनल। आप पैनल में है ना? नो प्रॉब्लम। देखिए 2017 मतलब 18 से जो पैनल में है, जब 2023 हो गया, 5 साल के ऊपर हो गया, ऑटोमेटिकली आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है। कई बार पैनल में आके लोगों ने ऑडिट भी नहीं किया है, ऑडिट किया है। तो हर साल में कम से कम एक दो ऑडिट जो किया हुआ है वो प्रूफ, उसके साथ जो डिपार्टमेंट में आपने सबमिट किया हुआ वो प्रूफ देना पड़ेगा। कम से कम साल का 2-3 प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नहीं तो आपने 1 साल किया, 2 साल नहीं किया है, तो फिर वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। एम आई करेक्ट सर? यस, करेक्ट। सर इंडिविजुअल में एक मिनट। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज ए मस्ट। इंडिविजुअल में कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट क्या हुआ? इंडिविजुअली ने कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफिकेट मतलब आपका जो सबको पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, स्टेटस रिपोर्ट मतलब WRC का जो हमारा फर्म का जो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जो हर साल हमें आता है, या इवन वेबसाइट में जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप फर्म और यूर प्रोपराइटर। इंडिविजुअली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. Individual with the proprietary concern name. So which is to be applied? Suppose this is a company or that particular individual. नहीं, आपका
प्रोप्राइटरी कंसर्न है ना, तो प्रॉपर्टी कंसर्न के नाम पर कर सकते हैं ना सर? यस, कैन वी अप्लाई? प्रोप्राइटरी कंसर्न में आप प्रोप्राइटरी अकेले है ना, तो अकेले कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है इंडिविजुअल करना पड़ेगा शायद। Individual. पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में जाएगा, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के नाम से करना। एक देखो, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप नाम से एप्लीकेशन करने का है, और उसके बाद हर एक पार्टनर का अलग अलग इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करने का है। This is not a partnership firm. This is a proprietary concern of individual chartered accountant. So he has to apply individual CAM or a proprietary concern. इंडिविजुअली आएगा, इंडिविजुअली आएगा। की होता है ना, फर्म का नाम नहीं लिख रहा है, फर्म का नाम पहले जो कौड़े एंड एसोसिएट ऐसा होगा, बराबर है ना? एक मिनट कौड़े एंड एसोसिएट होगा। अगर मैं एसोसिएट से नाम से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एन कौड़े कर रहा हूँ, तो आपका जो नाम है उसके बाद उसके नीचे प्रोप्राइटर का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है कौड़े एंड एसोसिएट प्रोप्राइटर एन कौड़े। या ही इज सेइंग इट, जरा आप एक्सप्लेन करिए। And that you have to fill up the individual details of all the PAN. Sir, documents to be uploaded. What is the date of the constitution certificate? एक मिनट, कौन सी डेट का चाहिए? लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट मतलब अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, इट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। So any date is fixed, cut off date है क्या? देयर इज नो कट ऑफ डेट। आप लेटेस्ट करिए, दैट विल बी बेटर। हाँ, No, date of Constitution certificate. हाँ, see, date of the constitution certificate, when the company was firm was established, that is what you are talking? The certificate which is to be given, uploaded, हाँ, as of what date? Recent. that is of the recent, maybe 2 महीना 3 महीना old will do. Today's date I. हाँ, you can take on today's date. क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट में लेटेस्ट यू कैन डाउनलोड, सो डाउनलोड इट एंड पुट इट। रजिस्टर्ड फॉर्म है और उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं उसमें। हाँ, नहीं, क्लासिफाइड अंडर व्हिच कैटेगरी? हाँ, ये वन, if it is a partnership firm, two partners without any experience, even today you have formed the partnership firm and it is approved by the institute, your constitution of the firm is approved in the institute, then you can go ahead with the A1 category. So you have retired from the firm and you have done audit in the firm, but now you are making an application as a proprietor. So what will be the experience? Then you have to explain that I was a partner there and whatever signature you have done of the audit, which has been submitted to the department, you can upload them. कम से कम साल का एक ऑडिट रिपोर्ट तो सब जो इंस्टीट्यूट में सब मतलब डिपार्टमेंट में सबमिट किया हुआ एक्नॉलेजमेंट, बराबर। कई लोग बोलते हैं मेरा इंटरनल ऑडिट किया हुआ, प्रूफ मैं कैसा दूं, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। तो उधर लास्ट टाइम स्क्रूटिनी में हमने ये निकाला था, कावड़े साहब जरा रेक्टिफाई करिए। यस, देयर व्हाट वी डिड, आपने अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरनल ऑडिट है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द सोसाइटी, यस, दूसरा आपने ऑडिट रिपोर्ट किया हुआ और सोसाइटी को सबमिट किया हुआ, उनका एक्नॉलेजमेंट सबमिट किया हुआ और उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट, ये तीनों देते हैं तो इट इज अंडरस्टूड दैट यू हैव एक्सपीरियंस। मान लो आप नया सीए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो यू कैन टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर ऑलरेडी इन द पैनल, ओके, एंड फ्रॉम देम यू कैन टेक ए सर्टिफिकेट एंड देन अपलोड। That gives us a certificate. There is no format. You can just say that this is to certify that so and so was working with me for last 1 year or he has done so many audit under my firm's name or under my guidance. There is nothing, no format. उसमें प्रभु हाँ, साहब, बताइए। उसमें जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट किया उसका नाम लिखना चाहिए। कौन सा सोसाइटी का किया? यस, ओके, सो आपका सर्टिफिकेट में कौन सा आपने ऑडिट किया है, 2-3 ऑडिट का लिखना चाहिए। यस, For old people, old impaneled,
Now, Saude sir said ki you don't need to upload any documents. Correct. So whatever audit he has done from 20 to 23, whether those audits to be included or nothing to be included. No, it has to be included. अभी कई क्या हुआ 3-4 साल से ऑनलाइन बंद है. Now once we go on doing the empanelment, यदि वो डिटेल मांगता है तो हमको अपलोड करना पड़ेगा. कावड़े सर, Yes. उनका सवाल ये है, हमने 3 साल का ऑडिट किया है, डिपार्टमेंट को सबमिट किया है, देन वो इंफॉर्मेशन अपलोडेड नहीं है, तो आर वी रिक्वायर्ड टू गिव दोस इंफॉर्मेशन? किसके लिए चाहिए आपको? ऑलरेडी यू आर इन पैनल. आई एम ऑलरेडी इन द पैनल. तो जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं. ओके. हाँ, सिर्फ इसके लिए अगर आप B1 में थे, अभी A1 में आएंगे, तो उसके लिए आपने जो ऑडिट किया है बीच में वो अपलोड कर दो. सिर्फ अगर ऑलरेडी यू आर इन A1 कैटेगरी, you have to not submit any document. If there is not any changes, only save and submit your application. B1 मधून A1 मध्ये यायचं असेल तरच. हो, बरोबर आहे. A1 मध्ये ऑलरेडी आहे तर मग बरेच 17-18 पासूनचे डॉक्युमेंट्स नको आहेत. नाही, काही गरज नाही. जरूर नाही. ऍफिडेव्हिट वगैरे पण सगळं जुनच ठेवा. नाही 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 नाही, ते नवीन. सर, त्यांचा प्रश्न असा आहे, आता मी ऑलरेडी पॅनल मध्ये आहे, मी ऑलरेडी A1 मध्ये आहे, ठीक आहे. तर आता मला नवीन एम्पॅनलमेंट साठी काय काय परत काही डॉक्युमेंट अपलोड करायला लागेल का? फक्त सेव्ह अँड नथिंग. तुमचा युजर आयडी पासवर्ड टाकून तुमचा प्रोफाईल ओपन करा. त्याच्यामध्ये कुठलेही चेंजेस फील्ड मध्ये नसतील. तुम्ही A1 कॅटेगरी मध्ये आहात. तुम्ही सेव्ह अँड सबमिट बटन दाबायचं, बाकी काही करायचं नाही. फक्त मी परत एकदा सांगतो, जे 5 वर्षाच्या आतले एक्सपिरियन्स वाले होते, आता त्यांना 6-7 वर्षाचा एक्सपिरियन्स झालाय, त्यांना A1 मध्ये यायचंय, तर त्यांनी 5 वर्षानंतर जो एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे त्याचे एक्नॉलेजमेंट फक्त अपलोड करा फॉर युअर सेफ्टी. आणि ते अपलोड केल्यानंतर तुम्ही ऑलरेडी मग ऍप्लिकेशन भरल्यानंतर तुम्ही A1 कॅटेगरी मध्ये याल. या, तुमचा प्रश्न सांगा. हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, हमने कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट नहीं की, तो कुछ ऐसे ही पैनल. कोई जरूरी नहीं है, आपका कोऑपरेटिव ऑडिट का कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है. नहीं, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो आप डे 1 से A1 कैटेगरी में आ जाओगे, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह. हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ जरूरी नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है. कावड़े साहब, एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं है. इवन इट इज LLP. पहली बार बताया, रजिस्टर फर्म के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरी नहीं है. हाँ, इतना है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा. पहली बार आप कर रहे हो डायरेक्टली. हाँ, आपको करेक्ट, आपको एक एप्लीकेशन ये देना पड़ेगा, एफिडेविट, कि हमको मराठी आता है. यस, वो तो आपने उसमें प्रोफार्मा 2 तो है, उसमें है. वही अपेंडिक्स 2 दिया है. वही मुद्दाम मराठीतच तुम्ही सही करून द्या. इंग्लिश मध्ये करू नका, नाही तर रिजेक्ट होईल. मराठी त्याच्यासाठी का तुमच्याकडनं लिहून घेतले आम्ही, का आम्हाला मराठी भाषेचं पुरेसं ज्ञान आहे. अच्छा, इसका कारण है क्योंकि वी आर इन महाराष्ट्र एंड एज पर द कमिश्नर सर्कुलर all the report has to be given in Marathi. So if you are not aware of Marathi, tomorrow you cannot take a stand that my junior has prepared and I have signed. No, that will not be accepted. So you should have a working knowledge of Marathi. In case some society say that I want in English, then they have to pass a resolution in the general body. They have to give a resolution to you, then you can. But that is only for housing society maximum. But all other places across Maharashtra, they demand Marathi report only. Yes, sir. मई 2021 में मैंने वो सर्कुलर प्रिपेयर किया था. करेक्ट. उसमें क्लियर कट लिखा है, प्रत्येक सहकारी सोसायटीचा ऑडिट रिपोर्ट हा मराठी भाषेतून दिला पाहिजे, सब्जेक्ट टू ज्या सोसायट्यांनी तुमच्या वार्षिक सभेमध्ये आमच्या संस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट इंग्रजी भाषेतून द्यावा असं ठराव केलेला आहे.
जो तुम्ही अपलोड केलेला आहे ऑडिट रिपोर्ट सोबत जोडलेला आहे, रजिस्ट्रारकडे दिलेला आहे, त्याच बाबतीमध्ये तुमचा इतर भाषेतला म्हणजे इंग्रजी भाषेतला ऑडिट रिपोर्ट आपला ऍक्सेप्ट केला जाईल. अदरवाइज यू हॅव टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट इन मराठी लँग्वेज. ओनली बैंक कंसर्न, आरबीआई मराठी समझ नहीं सकती तो बैंक का ऑडिट रिपोर्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं. What about housing society? वही आपका जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन होना चाहिए. देखो बॉम्बे ठाणे में कम्युनिटी वाइज हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो उसने एनुअल जनरल मीटिंग में अपना रेजोल्यूशन, आपकी जब अपॉइंटमेंट होती है तभी रेजोल्यूशन में लिखना चाहिए आई वांट ऑडिट रिपोर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके सर क्रेडिट सोसाइटी का हो सकता है इंग्लिश में अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया तो. क्रेडिट सोसायटी मध्ये नॉन महाराष्ट्रीयन सगळे लोक असतात, त्यामुळे त्या ठराव करतील असं शक्यता कमी आहे. म्हणून आम्ही फक्त हाऊसिंग संस्थेच्या बाबतीत त्याच्यामध्ये शब्द टाकलेला आहे. कुठल्याही पतसंस्थेमध्ये क्रेडिट सोसायटी असेल, सॅलरी अर्नर सोसायटी असेल, त्याच्यामध्ये सगळे मिक्स असतात. आणि हे का काढलं, आमच्याकडे बरेच अशा कंप्लेंट्स आल्या होत्या सहकार आयुक्त कार्यालयाला का पतसंस्थेचा ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटंट इंग्रजी भाषेत देतात. पतसंस्थांचे किंवा इतर सहकारी संस्थांचे बरेचसे सभासद हे ग्रामीण भागामध्ये राहतात, त्यांना इंग्रजी भाषेचं ज्ञान नसतं आणि ऑडिटरनी काय लिहिले हे त्यांना माहीत नसतं. म्हणून सहकारी संस्थेचे ऑडिट रिपोर्ट हे मराठी भाषेतूनच द्यावे, सब्जेक्ट टू आम्ही त्या सर्क्युलरच्या शेवटी जे टाकलेलं आहे 21/5/2021 सर्क्युलर आहे ते. ओके, इधर एक सवाल है. यस सर. मेरा 1820 में एम्पेनलमेंट नहीं था, but I was in empaneled in 1985, and I have done many Audits. unlisted banks. So will I be considered as a what you call A1. A1 यू आर ए प्रोपराइटर ना, proprietor? तो आप 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस जो है ना वो आप डिटेल दे दीजिए. तो यदि उसका अर्लियर ऑडिट जो किया है आपके पास प्रूफ वगैरह रहेगा तो आप दे दीजिए, जो सबमिट किया हुआ डिपार्टमेंट को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, तो आपको A1 में आ जाएगा. यदि नहीं है, मान लो कोई भी कारण से नहीं है, एक कोई भी इनसे तो आप प्रूफ तो ले ही लो, एक सर्टिफिकेट सोसाइटी से दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई CSA वगैरह, या आपका पैनल उस टाइम पैनल में थे आप, वो पैनल का नंबर और किसका जो जो ऑडिट किया है उसका डिटेल दे दीजिए. पैनल का नंबर नहीं है. नहीं है, 85 के बाद भी कई बार ठीक है, तो आप एक कुछ प्रूफ दे दीजिए, नहीं तो 1 साल का इंटरनल ऑडिट किया हुआ प्रूफ तो डाल दीजिए ताकि B1 में आप आ जाएंगे. सारस्वत बैंक का है, थाना जनता का है, सबका है. हाँ तो ठीक है ना, वो दे दीजिए, चलेगा ना, आप दे दीजिए. मुझे रजिस्टर्ड फॉर्म है, तो पहली बार अप्लाई करा एम्पेनलमेंट पे, तो उसको कोई दूसरे से एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने ये ऑडिट में असिस्ट किया कोऑपरेटिव सोसाइटी. बराबर. उसमें साइन तो नहीं कर पा रहा था. बराबर. सिर्फ नाम लिखना है कि इस ऑडिट में इतने पीरियड में असिस्ट किया. बिल्कुल. प्रोप्राइटरशिप वाले रजिस्टर्ड है, डेट लेटर. बराबर. और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, बोला गया था हर एक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच करना है और ओरिजिनल कॉपी का भी स्टैम्प देना है. अगर मैं ओरिजिनल कॉपी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और उसका कर रहा हूँ तो उसमें सेल्फ अटैच का साइन कंपल्सरी होगा देन हाउ? नहीं, देखिए, आप सब जब सेल्फ सर्टिफाई करते हो, आप जेरोक्स लेंगे, ओरिजिनल का जेरोक्स लेंगे, उसके ऊपर सर्टिफाइड करेंगे. ओरिजिनल के ऊपर कुछ भी साइन मत करो. स्कैन करो. ठीक है, मैं कहने का तात्पर्य ये है, डोंट टेक इट, यू हैव टू हैव ए ओरिजिनल सर्टिफिकेट. इन केस ऑफ ए डाउट दे मे कॉल फॉर इट. क्या होता है कि आपका होने के बाद उधर स्क्रूटिनी कमेटी है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट में स्क्रूटिनी कमेटी है, उधर उनको डाउट लगा तो वो ओरिजिनल मंगा सकते, तभी आप ओरिजिनल दिखाना चाहिए. ओरिजिनल जो है जेरोक्स का जेरोक्स निकालते हैं ना, तो क्या होता है कि वो बराबर दिखता नहीं है.
लास्ट टाइम स्क्रूटनी में कम से कम एक हजारों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। फिर कितना भी आप करो कुछ नहीं होता है। वो बोलते हैं कि दिखता ही नहीं है, आपका फोटो उधर दिखता नहीं है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सीओपी वगैरह दिखता ही नहीं है, आपने कुछ भी जेरॉक्स के ऊपर किया है। तो therefore they are saying it has to be original. That is the only reason, nothing else. It should be visible, clean. It should be clean and visible. इसमें यदि आपको लगता है जैसे बताया ना, आप कलर जेरॉक्स ही निकाल लो। सर इसमें एक ऐड ऑन था जो sometimes the certificates are very big in size. You cannot reduce it in A4. उसके लिए xerox ही निकालना पड़ता है। हाँ, जो भी है आप कर लो और साइन कर लो, है ना। और 1 MB का नीचे होना चाहिए। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करके लिखो। ऑडिट के हिसाब से अलग-अलग अच्छा, थोडासा साहेब यांचा प्रश्न जरा ऐकून घ्या। हाँ, यस, ऑडिट में of course I can answer, but let him answer. He is from the department. We should take full use of him. Sir, A1, A2, उसके बाद B1, B2 और C कैटेगरी है। तो ये क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है? तो why it is being divided into this category based on the experience? या उसका कोई लिमिट है क्या? कौन सा ऑडिटर कौन सा ऑडिट कर सकते हैं, कौन सा कंपनी का कर सकते हैं? He wants to understand that. गुड क्वेश्चन। अगर आप कोऑपरेटिव 69 रीड करेंगे। सर एक मिनट, सॉरी, प्लीज डोंट, या प्लीज गो अहेड सर। यस, कोऑपरेटिव रूल 1961, रूल 69, रूल 69 में 3 टेबल्स दिए हैं। 3 टेबल्स, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। टेबल ए में ऑडिटर का टाइप दिया है। टेबल ए में कौन रहता है? रजिस्टर फर्म, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, मोर देन 5 years एक्सपीरियंस, देन मेरे जैसा जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्टर फर्म ऑफ CMA, दोज हुआ मोर देन 5 years CMA। ये 4-5 कैटेगरी वाले ए में रहते। वो ये कैटेगरी के जो लोग हैं वो सिर्फ ये कैटेगरी में जो 20 टाइप्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया है वही ऑडिट कर सकते हैं। बी कैटेगरी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम दिया है वो ऑडिट कर सकते हैं। सी टेबल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम दिया है वही ऑडिट, ए वाला ऑल टाइप्स ऑडिट कर सकता है। ए 1 कैटेगरी में जो है वो ऑल टाइप्स ऑडिट कर सकता है। B1 में जो है, B2 में तो आप नहीं आते, B1 में आप आते जिसको 5 years लेस एंड 1 year मोर एक्सपीरियंस है। वो B1 में आप जो आएंगे तो B टेबल और C टेबल को ऑडिट कर सकते हैं। आप रूल 69 में वो 3 टेबल दिए हैं हमने, वो रीड करो आप। B1 वाला ये टेबल का ऑडिट नहीं कर सकता। बी और सी टेबल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम दिया है वो ऑडिट आप कर सकते हैं। सी में जो है वो आप नहीं है, वो सिर्फ सर्टिफाइड ऑडिटर्स है, वो सिर्फ सी का कर सकते हैं। बी और ए टेबल में जो सोसाइटी है वो नहीं कर सकते। एनी डाउट? मतलब मान लो मैं आपको उदाहरण बोलता हूँ, A1 वाले जो है ना, डिस्ट्रिक्ट बैंक मोर देन 25 करोड़ के ऊपर का जो पेड अप कैपिटल है, क्रेडिट सोसाइटीज है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेडरेशन है वो कर सकते हैं। फिर क्रेडिट सोसाइटी लेस देन 25 करोड़ एंड 10 करोड़ की जो बिजनेस है वो कुछ बी कैटेगरी में आता है। तो छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का मार्केटिंग सोसाइटी जो उसका कैटेगरी दिया है। और सी कैटेगरी में हाउसिंग सोसाइटी जो लेस देन 100 मेंबर्स है, मोर देन 100 मेंबर्स है तो B1 ही भी चाहिए। नहीं, अभी पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट है ना, सोसाइटी करती है, रजिस्ट्रार नहीं करता। ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन इन द जनरल बॉडी। हाँ, यदि जनरल बॉडी में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ फिर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है वो ऑडिट अलॉट करता है। अदरवाइज इट इज ऑलवेज बाय द सोसाइटी इन दैट जनरल बॉडी मीटिंग। मैं सबमिट करता हूँ। अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसका जो ऑडिट है
तो 7 अप्रैल 21 आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है अंडर सेक्शन 30 बीआर एक्ट 30, उसमें सिर्फ रजिस्टर फर्म ही ऑडिट कर सकते हैं, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो एक कैटेगरी में होगा तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता, डीसीसी बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता। ये आरबीआई का रूल है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का नहीं है। और इसके लिए जिस बैंक ने अपना रेजुलेशन किया है उसका रेजुलेशन आरबीआई के पास भेजने का है। आरबीआई अप्रूवल देती है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देता। बैंक के लिए, डीसीसी बैंक के लिए, अर्बन बैंक के लिए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई का अप्रूवल आने के बाद ही वो रजिस्टर ऑफ फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट कर सकती है। नया रूल आ गया। बराबर। सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसका अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द आरबीआई, बट आरबीआई नीड्स 3 auditors name to be approved in the general body, and then we have to send it to the RBI. Then RBI will select one of them. कई बार लगता है कि फर्स्ट वाला है तो आरबीआई करेगा करके, जिसको प्रेफरेंस है वो फर्स्ट में डाल देते हैं, आरबीआई थर्ड वाले को पकड़ के अपॉइंट करती है। सो देयर इज नो क्राइटेरिया। उसमें भी क्राइटेरिया दे दिया है। एक कॉफी है क्या? हाँ, उसके बैंक का टर्नओवर और आपके फर्म का लेंथ ऑफ सर्विस, प्रैक्टिकल क्लर्क, पेड एम्प्लॉय, इसका भी टर्नओवर के हिसाब से उसने वो सर्कुलर में दिया है। अगर आपके पास एक ही एम्प्लॉय होगा, एक ही आर्टिकल होगा, तो आपको ऑडिट नहीं मिल सकता। वो टर्नओवर पे दिया है, वो सर्कुलर रीड करो आपका 7 अप्रैल 21 का आरबीआई का है। बराबर। यस सर। Sir, while signing us for true copy as true copy, got to get the ODN number also? No. What is that? UDN? Yeah. This is not a financial certificate, na? You are certifying, it is a self certification. और जो आप एफिडेविट देने वाले हैं वो बिकॉज यू आर गिविंग टू द गवर्नमेंट, तो आपको प्लेन पेपर में ही करना है। आपको बॉन्ड पेपर मतलब स्टैम्प पेपर वगैरह नहीं चाहिए। फॉर्म्स का कोई फाइनेंशियल सबमिट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको सर ह्याला नोटरी करा लागेल ना, आपल्याला एफिडेविट म्हटलं की नोटरी करा लागेल। नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन इज सर्कुलर अगर आपने देखा ना 16 अक्टूबर का, उसमें क्लियर कट लिखा है प्लेन पेपर पे आपने साइन करके देने का है। बराबर, वैसा लिखा है, नोटराइज नाही। अनिल कावडे साहेब येत आहेत का? काय माहिती पडलं तुम्हाला? नाही, माहित नाही। हा, ते कमिशनर ऑफिस मध्ये काहीतरी गडबड चालला होता, ते काहीतरी हायकोर्टामध्ये ऍफिडेव्हिट द्यायचं असं तसं म्हणून मी बातमी घेतला होता, पण ठीक आहे। तर सर प्रभू साहेब, 5:30 वाजलेले आहेत, मला शिला जायचं आहे। हो हो, मला काय, येस सर, कंटिन्यू करा। येस सर, थँक्यू व्हेरी मच। आपण वेळ दिलेला आहे 4:30 बजे से लेके 5:30, 1.5 घंटा। साहब बोले थे 1 घंटा ही मैं रहूंगा, फिर भी अपना 20-25 मिनट इनॉग्रेशन में गया है, तो आपने बहुत अपना वक्त दिया है और आपने अच्छे तरह से हमें समझा है। तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्याबाबत WRC तर्फे आणि सर्व पार्टिसिपेंट्स तर्फे मी आपल्याला हार्दिक अभिनंदन आणि धन्यवाद दोन्ही करतो। ब्रांचचे कोणी आहेत का? ब्रांचचे कोणी आहेत तिकडे? नाही ना? ओके, आहे। ओके, चलो। हाँ, ये एक मिनट, उनको मोमेंटो देना है ना? हाँ, तेरा साहेबांना मोमेंटो द्यायचा आहे ना, कावडे साहेबांना? या थँक्यू व्हेरी मच। जोरदार ताळीने।
Okay, thank you very much. Thank you, sir. आप सब बैठिए, और कुछ सवाल है तो लेंगे, नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं. हाँ, हम लोग ये जस्ट 2 मिनट रुके. चलो सबके तरफ से. Yes, sir. So we are thankful to our cooperative guru, Mr. Ramesh Prabhu, for having organized such a wonderful enlightened seminar or workshop, which gives us a detailed idea about how we should, panel ourselves. I am sure that this is going to be useful not only to the young chartered accountants who are probably listing impanelling for the first time, but it will be definitely going to give us the experienced chartered accountant, because there were a lot of because we have earlier impaneled in the year 2018. Now it is 2023. So we all of us must have forgotten the procedures and all that. In spite of that, the Ramesh Prabhu sir has given us a very enlightened insight, information about how to impanel, that too in lucid language. So on the behalf of the WRC and all of you, we are giving a short presentation. Thank you. धन्यवाद. Sir, एक 10 मिनट और spend करेंगे, so that the purpose for which you have come should be, done. आप इधर पे. नेम प्लेट इधर करते हैं. तो मैं आपको जो हमने सर, हाँ नहीं, ये अपना सर्कुलर जो है ना, वो अपलोड करना है. प्रेजेंट करूं? हाँ, ओके. आपको दिखाई दे रहा है? ये पॉइंट साइज बढ़ाना है, दिख रहा है ना? ओके. देखिए ये सर्कुलर है जो 16th October. This circular has been issued on 16th October 2023 by the Commissioner of Cooperation. If you see on the left side, on the top, right hand on the top, 2024 to 2026 for preparation of panel of auditors of cooperative societies. So this panel, if you see the date, it is 16th October 2023. Now there are 3 very notifications which have been referred. One is the 20th January 2017 circular regarding the resolution made by the government that once in 2 years they will come out with the panel. That was in the 2017, 20th January 2017, that was decided. So every 2 years, because earlier it was once in 3 years, we said no, it should be 1 year. Then he came out with the what you call adjustment that once in 2 years we will do it. So that is how 2018 to 2020 there was a circular, and thereafter, of course, because of the COVID, it has changed. Then Government of Maharashtra, 27 February 2018 is the date when the earlier panel was declared, where we have about 10,500 auditors, out of which around 4,000 are chartered accountants. This time we want to see at least that figure is doubled. If not 10,000, at least 8,000 it should be reached. That is our aim. Then third is letter from the Government of Maharashtra. That was the last date where the audit panel has been extended. Date has been extended. Earlier panel, every 6 months they were extending, and that is how on 30th June 2023 the panel has been now extended up to 31st December 2023. So that means from 1st January 2024 we are expecting to have a new panel. Section 81, if you see, इसको कैसे नीचे जाने का? Yeah. So if you see, there is section 81, it is not 89. So it is section 81 of the MCS Act. If you see here, section 81 of the MCS Act is talking about appointment of auditors, who should be the auditor, how the audit should be carried out, and all that is given in section 81. So if you see the last para, it says this panel includes chartered accountants, firms of chartered accountant, cost accountant, firms of cost accountant, certified auditor, and government auditors. So this way we have 6 category of the people who can be here included. So chartered accountant, firm of chartered accountant, cost accountant, firms of cost accountant, 4 certified auditors, and government auditors. Government auditors includes the retired. So we will not deal with all other things. Now we'll talk about only CS and the firms of CS. Okay.
Now I will straight away come to the last para, that next para. If you see, the program action has been given. Now I'll tell you, many people are under the impression that the list will be extended. Every time, this has been the case. But earlier, there were a lot of glitches in the software, and many people apply on the last minute, and then the entire server gets crashed, and then again they have to extend. And I request you, don't do that. If it is opening on 23rd of October, start preparing. In my office, I have told 4 or 5 people have to empanel with all my associates. I said, do it immediately on 23 itself. So don't take last minute chance. It may be extended, it may not be extended. And then you'll have to go to the grievances committee, you have to go to the various committees. And one more thing, let me tell you, WRC this time has already written a mail to all the branches. And in every district registers, 2 or 3 representatives from the CS will be there. This is one additional service that we are giving. So you may be in touch with those people, because they will be there in the scrutiny time. If there is anything which is pending, you can immediately tell them, and then they can, of course, it becomes difficult to upload because that entire thing gets blocked. However, you can give it in the, show it to them at the time of scrutiny. And we have told our CS who are going there, if there are any lapses, then immediately contact the member, get the information so that the other committee members get satisfied, because there are going to be GDCCS, the members are there, cost accountant representative, CS representative, and DDR and DSA. 5 people committees are there who will going to scrutinize each of the application. So it may be difficult, but anyhow, if there are something that we are requesting this, so therefore there is a line of action. So this entire thing has been given. 20th October, it gets published, and 23rd, that is today is the 20th October. So today we have got it published. Okay. 23rd October onwards, it starts up to 6th November. And then scrutiny also timeline is given. So if one is missed, everything gets missed. So 7th October to 21st November is the scrutiny of the online application. And thereafter, they have to finally do it. They have to sign it and send it to the commissioner office. Then if it is rejected by giving reasons, then of course, there is a grievances committee at the Joint Registrar Office. We have to file grievances. There again, the redressal committee, there are 3 people, Joint Registrar Admin, Joint Registrar Audit, and then the Deputy Registrar of the Joint Registrar's Office. So again, you will have to go through various procedures unnecessarily. And once they are accepted, and they may reject also. If they are rejected, that is the decision is final, then you may have to file a writ. So instead, go and get it done as early as possible. So then period of uploading necessary documents, that is the government will upload. Among the appeals, grievances, all this up to 21st December it is there. So you can go through this circular carefully. This will be circulated in English to all the members by the WRC. District should be constituted. That is what we said. In every district, there will be district scrutiny committee. I am not going to deal with it, but I can only tell you there will be representatives from the WRC. Then divisional grievances committee kaun hai, wo bataya. So functions of the district level scrutiny committee, that is given. We are not on that today just now, because the job of the district level scrutiny committee is to scrutinize the forms which has been issued. And if they find something is wrong, they may get satisfied by inviting those people and then they approve. Otherwise, it may be rejected also. Once it is rejected, you will have to go to the grievances committee. So this is how things are happening in the scrutiny. Application, which application? Suppose the application does not meet certain criteria, then they will be rejected. So it is, some of the reasons are given. They are only example. Document related to educational qualification are not uploaded, not clear. That means your Xerox is not clear. It is not uploaded properly. Sometimes, you need to give your CA qualification certificate, that is certificate of, membership, as well as certificate of passing, membership, COP, both. It is not certificate of only membership. You have to give a certificate of practice also. If you are a graduate, you have to upload the graduate certificate also, graduate as well as CA.
non-uploaded self-declared affidavit. So if you don't upload the self-declared affidavit, which is there, uploading photos of specified size. कई लोग है ना इतना छोटा सा stamp size photo they are uploading. I don't know why they do like this. So sometimes this type of things happen. PAN card photos are not uploaded. Uploading certain, this is non-uploading constitutional certificate. See, in spite of telling that you need to get a certificate from the institute website, download, and you have to upload. Many people, they don't upload. They think COP is more than enough. No, there is a constitutional form which you need to do. Of course, if you are an individual, it is not required. If you are a proprietary firm and a partnership, it is required. Non-uploading of certificate of experience. See, many people think, मैंने मेरा certificate दिया. No doubt. If you are an internal auditor, you need to establish that how you are an internal auditor, which society you are an internal auditor, which period you are an internal auditor. If you have got the easiest thing to do is, honestly speaking, get a certificate from a fellow chartered accountant who is there in the, this one, what you call, and where you have done the, experience certificate with the names of the society where you have already done that. Even if there is a internal audit which he has done, there is no problem. But what are the things you have done? Because ultimately you don't sign. So if it is allowed to a GDCA, why not for a chartered accountant? So that is permitted. So 1 year, this is required. For a partnership, it is not required. So eligible, ineligible forms will be sent by this one. Criteria for online scrutiny. See, what is the criteria? Criteria is A1, A2, B1, B2, and C. This is the criteria adopted for the scrutiny. I'm not getting into it. Abhi, item number 4, partnership firm of chartered accountant and cost accountant. What is required to be done? A partnership firm cost accountant does not need to have experience of audit. Partnership does not require any experience. So experience ka jaruri nahi. While determining the criteria of auditors, partnership firm, cost accountant firm will have A1 category. Okay. And in case of partnership cost accountant, whether the details of the firms are mentioned in the application should be verified from the constitutional certificate. For example, many times what happens, you say I got 4 partners, but in your constitutional firm there are only 3 partners, which you are downloaded from the institute. So if it is there 3, don't say 4. You must have recently done your partnership firm, but that is not uploaded in the your CA portal. So what is there in the CA portal, match those things. The partnership firm are required to upload the affidavit that we have said. Affidavit ka format diya hai. One person cannot apply in 2 different classes. So as he has said, you apply for an individual also. Many CAs have a proprietary firm, also partnership firm. You cannot apply to, because each partner's PAN numbers are being picked up by the system. And if one of the PANs or in 2 applications, 2 different forms are seen, then it is difficult. Let me tell you, once you are empaneled, you can do the audit of everywhere. It is not that earlier, what used to happen, why people used to do 2 applications. Suppose I am in Mumbai division. I was not allowed to do the audit of Konkan division or Pune division. The entire corporate department is various divisions, 9 divisions. So I was not allowed. Now it is approved by way of a GR. This panel is prepared by the what is known as cooperative commissioner, but gets approved by the cooperative department. So it is approved as a part of notification by the government. Therefore, what happens is we can do across Maharashtra. So there is no restriction. So therefore, don't think of making 2-2. हाँ, कई बार होता है कि हाउसिंग सोसाइटी का मैं प्रोप्राइटरी में लेता हूँ, मेरा बड़ा फर्म का होगा, then I take in a partnership. Therefore, let me apply in 2. Please don't do that. It doesn't mean that you cannot do the business in partnership. You do it. But for this, I think you should always apply for the partnership. If you think that is the way to go forward, then sharing in between you, how you want to do, you do it. Then all the partners must mention the membership number, and the affidavit must be signed by all the partners. It is not that the affidavit is signed by one of the partners for all partners. No, every partner will be held responsible, and therefore everybody has to sign. Self-attested PDF of the original constitution. That means you have to take the certificate from download from the website, sign it,
and make it as a PDF and then upload. That is about the firm. Upload, scan photo of PAN card, photographs of all the partners. So that need to be uploaded and it should be clear. As I said earlier, we have seen in the scrutiny, stamp size photo is not eligible and therefore many of the firms applications were rejected. Partnership firm, proprietary firm, as well as individuals cost must be registered office in Maharashtra. That he has made it clear. Head office should be in Maharashtra. Okay. Chartered cost accountant. Now you may say from where we come to know all this. Of course, WRC has the database. From the WRC we come to know. When you talk about constitution of firm, that also gives the head office of the firm. So from there it gets picked up. नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा भले दिल्ली में हेड ऑफिस है, मैं तो बोलूंगा कि मेरा महाराष्ट्र में, because there is a branch, you give the branch address and you, so there is people who scrutinize it, so you will be caught. It is not that the entire committee sits and does the scrutiny. There is a scrutiny form which is done. The DDR office always carries out the scrutiny in advance, keeps everything ready, and then when the committee sits, they show these are the flags, these are the issues which are there. So whatever the points I am talking about, they verify, tick their office clerks, keep it ready as the application comes, and then the 5 people sit, verify, see on the online. Then they will say, this is wrong, this reject, approve. And then they make a minutes and go ahead. So therefore, be careful. While determining the auditor category of chartered accountant, whose individual, who has at least 5 years of experience, will come into A1 category. That I have said, he has already said. If it is less than 5 years and more than 1 year, then only you are entitled in an individual capacity. Then you will come in B1 category. Certified auditor, I am not going to discuss. Government auditor, I am not going to discuss. Self-declared affidavit. This is important. Self-declared affidavit contains various things. I will read the format only, but anyhow, it contains, it should be on a plain paper in a prescribed format as per Annexure 2 and uploaded in a scanned original copy. Scanned original copy मतलब अच्छा दिखने वाला, उसको स्कैन करो, उसको सेल्फ अटेस्ट करो, फिर अपलोड करो. मतलब आपका तो उसमें तो सिग्नेचर होता ही है. So there is no need of further self-attesting, but it is a self-declared affidavit signed by all the partners. All the auditors are required to have a proper knowledge of Marathi. Yeah. Self-declared affidavit should be in Marathi or in English? Marathi में डाल दो. हालांकि इंग्लिश में हो सकता है. I have converted in English, but I would suggest at least that you keep in Marathi. मराठी टायपिंग करून घ्या ना बाहेर. हाँ बराबर आहे. नाव वगैरे इंग्लिश मध्ये करायचे म्हणजे आपली असते तशी. मराठीच नाही. नाही पण मराठीतच कर. ते बोलत होते ना सही सगळं मराठीत कर. असं नाही झालं. मराठीत सही नाही. तुमचं सही तुम्ही ज्या लँग्वेज मध्ये आहे. मी कन्नड मध्ये करणार आहे. घाबरू नका तुम्ही. पण मराठीत ऍफिडेव्हिट केलं तर चांगला आहे आणि ते नमुना आहे. You just get it typed from the somebody. Okay. Self-declared affidavit should be prepared on a plain paper. All the auditors are required to have a proper knowledge of cooperative audit, cooperative society, and sufficient knowledge of Marathi. And they should be living. All this comes in the affidavit that I am living in Maharashtra for more than 3 years. But you don't have to give any this proof, no, that you are staying in Maharashtra for more than 3 years. Yeah, you are right. See, आपको मैं बताता हूँ. जरा समझने का कोशिश करिए. ये सर्कुलर क्यों आया? लास्ट टाइम स्क्रूटिनी में यही सब झंझट था कि बोला कि मराठी में है और आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में दिखाओ, आपका मार्कशीट में दिखाओ, आपने मराठी पढ़ा करके. जब आपने मराठी नहीं पढ़ा मतलब आपको मराठी नहीं आता है, फिर इसके ऊपर WRC से रिप्रेजेंटेटिव एजिटेशन. ऐसा थोड़ी है कि see there are so many Maharashtrians who are going in English medium and they have taken second language as Marathi instead of Marathi, Hindi. And they don't have. So even Maharashtrians were rejected. So then it was decided that at least some declaration on the oath is required that I have sufficient knowledge of Marathi. I know cooperative audits also. I understand all this. So this is self-declaration, no need of any proof. If there is a proof, then self-declaration has no meaning. So this is what we have devised. Okay. So this is all experience. At least 2 partners of the firm have decided in Maharashtra. So
there should be two partners in a partnership. At least two partners of the partnership firm have resided in Maharashtra for at least 3 years. Why it is two partners? Because suppose I'm just saying, I'm in Maharashtra, my brother is in Karnataka. We two make a partnership firm and show head office as Mumbai, and I don't have any experience of cooperative. My brother also does not have a experience of cooperative, and then I get a A1 category audit. So that should not be there. So when the partnership firm requires minimum 2, so that means minimum 2 partners should be residing in Maharashtra, and they should be knowing Marathi. Okay? That is the reason. If you are reasonably in 3 years in Mumbai or Maharashtra, it is understood that a reasonable language, at least you understand what is Marathi. Okay? For staying 3 years is to be given or no? Self-declaration. That is good. That is good. For you, anyhow, you are saying. Self-declaration mention the details regarding experience of cooperative. That self-declaration will have a column. In that column, which audits you have done in the last 2 years, 3 years. Complete karne ka? Yeah. So then apna experience audit of cooperative society, it has been already explained. In respect of experience of cooperative society, only experience certificate issued by the registered chartered accountants, cost accountant, or their firm will be considered. Registered means empaneled. उधर translation में इन्होंने गड़बड़ किया है. It is empaneled. ठीक है. Chartered accountant firm not in the panel of cooperative department, experience will not be considered. नहीं तो आप बोलेंगे कि 25 साल old firm है, उसका experience ले लो. Who is never in the panel. So how can he do the cooperative audit? So it should be seeing that old firm का panel में है क्या नहीं देख लेना. For inclusion in the list, that is panel, experience should be taken into account if internal audit is done. Internal audit done is no problem, but you need to give all the proof that your appointment, this, that. Chartered you have experience of 5 years or more regular audit, they can be coming into A1. So all this is given here, certificate of practice. So I don't think functions performed by grievances committee, oh jane do. So types of audit, anyhow, we already discussed. Okay. Now, straight away, let me come to the category of firm already have self-declaration format. I so and so chartered accountant and write an affidavit that I have passed the exam on so and so date. Till now, I have got so much years of experience, and these are the types of audit that I have carried out. Annual audit, internal audit, performance audit, जो भी है. But this is relevant for those who are less than 5 years. For even for completion of 5 years, have to give. No. Those who have got more than 5 years also have to give, provided you want to go in A1. You are already in B1. No problem. आपको सिर्फ save and कर देने का. So experience certificate here. Not required. Not required. So this will not be required for partnership firm. Very good question. He is already in B1. Okay, last time. Now 5 years are complete. Now he wants to go in A1. So once you log in and password, they will ask you the list of experience. So every year, one or two audit which you have done and submitted to the department, you upload. And in this one also, what you are uploading there, okay, all that information be here. Many times what happens, you give different experience here. What you are uploading is different. That you don't do. Okay. So whatever you are uploading, one-on-one at least, to establish that you have got 5 years experience. So it will not be required for partnership firm. No. Here, experience, na? That is not required. For partnership firm. Correct. It is not required. But if you have, you attach. There is nothing wrong. See, okay, once you are right. Your question is right. Valid question. It only says, see, look at it. We have audited the firm and its reports are submitted to the cooperative department and society. In case of even partnership deed, a partnership firm, it doesn't say that you don't fill up. Whatever you know, you can say here, following are some of the reports submitted to the department. Even if it is a partnership firm, I would suggest that you fill. Otherwise, because of this, one per year. Minimum 1 report and maximum 3 reports. How many more will you try? Correct. Because there won't be that much space in that affidavit. Correct. No, but the one who is submitting for the first time, they will not be having any this experience. In that case, it is nil.
In that case, experience is nil. Barabar, for the first time you are doing. However, here the certificate will be there of your experience certificate of either internal audit or of a certificate given by your another fellow chartered accountant who is in the panel. वो जो सर्टिफिकेट में जो नाम डाला है वो डालना पड़ेगा. Then we need to change the upper line that we have conducted the audit. We can write we have assisted in the audit. No, you have conducted the audit. Now what is that? You have assisted or you have conducted the audit. Conducting the audit. Even Ocha Cheng is conducting the audit. It never says that you have signed the audit report. You have conducted. To be given partner wise, that means. Not necessarily firm wise, partner wise. But if the firm is applying and each partner will be, whoever is the signing partner will have to give. Yeah, see. But experience is not necessary. But if it is a partnership, experience is not required. Huh? If it is fresh, it's a partnership. Then there's no experience. Yeah, what I'm saying, if there is a experience, you mention. If there is no experience, new partnership firm, it is not required. If it is a old partnership like B1, now he wants to get as a A1. In that case, he will have to write as a partnership firm. How many years? 1 or 2 you can write. It is written here. Say for every year of experience, name of minimum 1 or maximum 3 societies should be given. And type of audit. Just look at the note. Now if it is okay. Whether this has to be supported by a. No, not you have submitted to department like that. Yes, yes, it should be supported, that it should be submitted to the department. Or submitted to the cooperative society at least. At least cooperative society. उसका acknowledgement तो ले लो. Appointment letter रहेगा तो भी चलेगा. But ये new firm जो उसका experience नहीं partners को, वो तो ऐसे भी वो classify करेंगे A1 में ना? नहीं, A1 में classify करेंगे, उनका experience नहीं, इधर नील लिख दो. जिसका already B1 में है, तो उसको A1 में जाना है, उधर लिखो. अच्छा, मैं already A1 में हूँ, फिर भी I would suggest that you at least fill up one society ना per year. किया है तो पर कोई नहीं किया उसके लिए बोल. हाँ. We have lived in Maharashtra for last 3 years and knowledge of Marathi. I have knowledge of Marathi. Society for which I have not taken a loan. You should not be taking loan more than 10,000. So if you are a borrower, then you cannot accept the audit. I will not audit any society which I am an officer, employee or director. In Karnataka, if you are a member of the society, you cannot do the audit. In Maharashtra, if you are a member of a society, you can. But you should not be an officer. You are a managing committee member there. So then, what do you mean by officer? Officer means the office bearer. Employee. Then director means managing committee member. So I will not audit any society of which I am a director. That means if you are a member, you can do, but if you are a director, you cannot. Member of society, of a housing society can do the audit of that. Of his own society. Okay. If he is not a managing committee member. But I would ideally say avoid it. Otherwise, you will get into an internal politics. Oh, ethically should not be doing, but legally you can do. I mean, I'm just saying. वो आपसे फ्री एडवाइस नहीं ले रहे. Society, I have done internal audit. Whatever society you have done, statutory audit of that, so for those years will not be accepted. Means if you have done an internal audit of a society, you will not accept the statutory audit of that same. Because sometimes, in case of a firm caution, its partners are not individuals or partners in other firm. So these are the affidavit you have to give. That's it. बाकी का ये जो है period of submission वगैरह already discuss हुआ है. How you should do that is given. Who should be in the list? आप इसको पढ़ लेना. आपको email में आ जाएगा. Okay? So it is available on the site. नहीं, ये translation हमने किया है. हमारा ऑफिस से मैंने करके WRC को दिया है. Get it. Okay, shortly. And if you want, from here you can take it. Sir, any ceiling number of audits? Huh? Any ceiling? Very good question.
See, any auditor cannot do more than 20 audits, which has got paid up capital of more than 1 lakh rupees. Housing society more than 1 lakh to रहता नहीं. हाँ, less than 1 lakh, you can do any number of audits. And once in 3 years, there should be change of auditor. That means you cannot be the auditor of the same society for more than 3 years. With this, thank you very much for coming here. And in fact, we wanted to do entirely online, but then we thought let us have physical also. Sir, last question. LLP is also formed for this. Suppose it is a proprietary company, individual है, and it has experience of less than 3 years. मतलब total COP आके 3 years हुआ है, तो that is not a condition, ना? No, you get the one. Can get, because I have experience letter from another CFO. That is okay. Correct. One more question for cooperative audit society. I have read this audit inspection. So societies, है ना, other than preferred amount, other than mentioned in clause A, shall engage clause B. Societies under the society. ये है ना, आप ओल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑडिट कॉस्ट भी ऑडिटेड है ना, ये ओल्ड है, ये नया नहीं है. अच्छा ठीक है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी करने के लिए यू हैव टू गेट एम्पैनल्ड. बिना एम्पैनल्ड वाला नहीं कर सकता. लेकिन ओल्ड वाले ऑडिट रहेंगे तो कोई भी ऑल शुड बी एम्पैनल्ड. अच्छा, ऑल शुड बी. इसमें ನೀವು COP ಇದೆ ಅಲ್ಲ, COP and membership ಇದೆ. Yeah, at least है ना, should be empaneled, should be maintained by the panel, maintained by the auditors. GDCL important. ನಮಗೆ COP ಇದೆ ಅಲ್ಲ, membership ಉಂಟಲ್ಲ, ಇನ್ನ. From the panel of the auditors or by a chartered accountant only का सर certificate. वही है ना, ये गलत है. आप ये कभी गए 2013 का पहले का कायदा पढ़ रहे हो आप. आज 10 साल पहले का कायदा उठा है, वो गूगल को बिलीव मत करो. सर पण ह्याच्यात मी नाहीये. लॉ बदल अभी इट्स थ्रू द पैनल. विदाउट पैनल यू कैन, एंड पैनल में आने के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स ये सब करने की जरूरत नहीं. त्याच्यातले ऑलरेडी ते त्यांना 5-5 शेअर दिलेले इश्यू केले होते. आता ऍडिशनल 5 आम्ही इश्यू करतो, तर पेडअप कॅपिटल विल इन्क्रीज. बरोबर. दुसरे 10 मेंबर नवीन येतात, त्यांचं 500 प्रमाणे येतं. बरोबर. हे सगळं केल्यानंतर आमचं पेडअप वरून अथॉराइज आहे आमचं 2 लाख. बरोबर. 11,000 पेडअप कॅपिटल एक्सीड होत नाही. की पेडअप यू हॅव टू इन्क्रीज अथॉराइज कॅपिटल. कसं करायचं? कशाला? तुमचं ऑथराइज ऑलरेडी 2 लाख रुपये आहे ना ऑलरेडी. फक्त यू हॅव टू जस्ट इन्फॉर्म दीज मेंबर्स हॅव allotted. आपलं नाव काय? राम गावडे रे गावडे. What is second stage? We do have a Okay.